Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kuttapalli. Welcome to Inside Bulletin. Well, more to the details. Karnataka State Home Minister G. Parameshwara stated that the government will submit a report to the court regarding the recent trampling case. He also confirmed that the National Investigation Agency has sought to take over the investigation and added that the state government has limited options in such matters. Parameshwara also mentioned that while the Chief Minister and the Deputy Chief Minister have gone to Delhi, where he was not informed about the reason for their visit, and however, he expressed readiness to join them if called. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಅವರು ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಅವ್ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದತ್ತವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. CM ಮತ್ತು DCM ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, CM ಅವರನ್ನು DCM ಅವರನ್ನು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಐಎದು ಅವರಿಗೆ ದತ್ತವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. After inaugurating the redeveloped Sadh Bhavana Park near Rajghat, Delhi, Chief Minister Rekha Gupta said that good times have begun in the capital with collective efforts driving the vision of the Viksit Delhi. She also stated that the Delhi government, municipal corporations and other stakeholders are united in their commitment. Expressing optimism, Gupta said the dream of beautiful and developed Delhi would be released within 5 years, and adding that people will feel proud of having chosen the current government. देखिए, बहुत ही एक अच्छा टाइम दिल्ली का शुरू हुआ है. मुझे लगता है जहां अलग अलग लेवल पे सभी सरकारें दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने में जुट गई है. और जहां केंद्र सरकार कार्य कर सकती है वहां केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है. जहां पर दिल्ली सरकार का कार्य है, दिल्ली सरकार 24/7 अपने कार्यों को कर रही है. और जहां नगर निगम की जो जिम्मेदारियां हैं, नगर निगम भी निभाने में लग गई है. तो मैं ये समझती हूँ कि जब हर व्यक्ति ये समझ ले कि ये शहर मेरा है, इसे मुझे खूबसूरत बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि यहाँ डेवलपमेंट ना हो पाए. और एक सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली का जो सपना हमने देखा है अपनी जनरेशन्स के लिए, मुझे लगता है कि इन 5 सालों में दिल्ली का चेहरा इस कदर खूबसूरत होगा कि सभी लोग सोचेंगे कि जो निर्णय दिल्ली के लिए लिया वो बहुत ही सुंदर था और दिल्ली एक अलग विकास की. देखिए, बहुत ही एक अच्छा टाइम. Well, Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena said the city has been witnessing a wave of development since the formation of the new government. Speaking at the inauguration of a redeveloped park, Saxena expressed confidence that the project would benefit residents of Old Delhi. He also highlighted the development of restaurants and the walkways in the area and added that the efforts are underway to create more public spaces where Delhiites can enjoy fresh air in a clean and pleasant environment. एक तरीके से डेवलपमेंट की बहार शुरू हुई है दिल्ली के अंदर जब से नई सरकार बनी है. और आप देख रहे हैं कि हर रोज कहीं न कहीं कोई नया प्रोग्राम हो रहा है जहां पर डेवलपमेंट की ही सिर्फ बात हो रही है.
मुझे यकीन है कि जो पार्क बन के तैयार हुआ है, जो डीडीए ने बड़ी मेहनत से बनाया है, जो करीब 16 एकड़ के अंदर है, वो दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आज आप देखते हैं कि ज्यादातर भीड़ जो है कर्तव्य पथ पर होती है, लाखों लोग वहां पर आते हैं। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर वो स्पेसेस बहुत कम हैं जहां लोग जाएं और अपनी फैमिली के साथ बैठें, अब एंटरटेन कर सकें। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी बन रहे हैं। उसके साथ साथ आपने ये जो पूरा पाथ देखा है, वॉकवे है, पूरा करीब 2 किलोमीटर आप स्ट्रेट वॉक कर सकते हैं। गार्डन बन रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ एक जो छोटी सी प्रॉब्लम थी उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि डीजेपी की एक लाइन यहाँ से जा रही है, उसको भी हटा दिया जाएगा। तो कोशिश ये है कि कितनी जल्दी से जल्दी दिल्ली के लोगों को एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ माहौल में उठने बैठने की स्पेस क्रिएट की जाए। आपने जो देखा है कि यहाँ पर जो हॉर्सेज लगे हुए हैं या आर्टिफैक्ट जो भी लगे हुए हैं वो राजस्थान और उड़ीसा से लाए गए हैं। उनको स्पेशली चूज किया गया है और लगाया गया है। तो कोशिश यही है कि हम कितनी जल्दी दिल्ली को एक बहुत सुंदर नगरी बनाने में सफल हों। इसी के ये प्रयास चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रही हैं दिल्ली के अंदर, आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो हैं होने वाले हैं। इसी मंथ में ही कई प्रोग्राम स्लॉटेड हैं। एक तरीके से डेवलपमेंट की बयार शुरू हुई है दिल्ली के अंदर जब से एक नई सरकार बनी है और आप देख रहे हैं कि हर रोज कहीं न कहीं कोई नया प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर डेवलपमेंट की ही सिर्फ बात हो रही है। मुझे यकीन है कि जो पार्क बन के तैयार हुआ है, जो डीडीए ने बड़ी मेहनत से बनाया है, जो करीब 16 एकड़ के अंदर है, वो दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आज आप देखते हैं कि ज्यादातर भीड़ जो है कर्तव्य पथ पर होती है, लाखों लोग वहां पर आते हैं। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर वो स्पेसेस बहुत कम हैं जहां लोग जाएं और अपनी फैमिली के साथ बैठें, अब एंटरटेन कर सकें। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी बन रहे हैं। उसके साथ साथ आपने ये जो पूरा National Conference President Farooq Abdullah expressed satisfaction while traveling to Katra abroad the newly launched Vande Bharat train. I'm happy to travel on this train to Katra and the train will benefit us all a lot. People will be able to travel conveniently without worrying about the airfare, which remains high most of the time. I hope people will make use of it, he said. The high-speed train is expected to boost connectivity and pilgrimage travel to the Vaishno Devi shrine. Abdullah praised the initiative for making travel more affordable and accessible to common citizens. किस तरह देख रहे हैं आप खुद आज वंदे भारत ट्रेन? मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। दो चीज़ें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जहाज़ वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फायदा होगा इससे और हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा हम इस्तेमाल। किस तरह देख रहे हैं आप खुद आज वंदे भारत ट्रेन? मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। दो चीज़ें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जहाज़ वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फायदा होगा इससे और हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा हम इस्तेमाल। किस तरह देख रहे हैं आप खुद आज वंदे भारत ट्रेन? मुझे बहुत खुशी है। In a shocking case of medical malpractice, an MBBS qualified doctor allegedly posed as a cardiologist and performed over 50 surgeries at PK Hospital in Faridabad. Several patients reportedly developed complications following the procedures. TCP Maqsood Ahmed, NIT Faridabad, said, "We have received a complaint regarding an incident at PK Hospital where an individual, namely Dr. Pankaj Mohan Sharma, allegedly performed a surgery at the heart center wherein several patients developed complications. Authorities have seized documents related to the accused and verification is underway. A detailed investigation has been launched to determine how the individual bypassed standard hospital protocols and whether there was institutional negligence involved."
ये शिकायत दी है, ये संजय गुप्ता कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर जिसमें बीके अस्पताल आता है वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था और उसने उस दौरान काफ़ी मरीजों का इलाज किया है और जिसमें उसने ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनमें कुछ लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। तो उस संबंध में हमारी अभी जाँच चल रही है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी जो है उसमें जाँच की जा रही है और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसका डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं और हमें अभी कुछ ही दिन पहले वो डॉक्यूमेंट्स सारे प्राप्त हुए हैं और अब उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जहाँ पे डिग्री मिलती है, जहाँ पे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है, सारी जगह उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में जब जांच चल रही है तो लगभग कितने दिनों के अंदर जांच पूरी होने का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी सर? देखिए, पहले ये है कि जैसे हमें रिकॉर्ड मिला है उसके बाद में हम इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ दिनों के अंदर इसमें बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद में जो भी हालात आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कोई स्टेटमेंट पंकज मोहन शर्मा की तरफ से कोई ली गई है या उससे कोई पूछताछ की गई है इस मामले में? नहीं, पहले हम ये डॉक्यूमेंट जो है हमने रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल से लिया है और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और उसके बाद में ही अकॉर्डिंगली फिर उनकी कार्रवाई की जाएगी। जो भी है स्टेटमेंट लिया जाएगा, अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं तो एफआईआर की कार्रवाई होती है, जो भी एफआईआर की जाएगी और उसके आगे ये शिकायत दी है, ये संजय गुप्ता कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर जिसमें बीके अस्पताल आता है वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था और उसने उस दौरान काफ़ी मरीजों का इलाज किया है और जिसमें उसने Reacting strongly to the attack on Congress youth leader Shahzan Mia's house, senior Congress MLA Sudeep Roy Burman condemned the incident and expressed concern over the treatment of minorities in the state. It's a very shameful thing that has happened over the last 3 days, and minorities, especially Muslims, were prohibited from the sacrificing cattle in many parts of our state. They were beaten up and their properties were damaged and destroyed, Burman said. He also urged the government to take stricter actions and protect citizens' rights. It's a very shameful thing that has happened during the last 3 days. Minorities, especially the Muslims, were prohibited for cattle sacrificing in many parts of our state in Tripura. They were beaten up, properties damaged, destroyed. Only source of livelihood was also vandalized. An old aged man, his beard, long beard, was torn by the goons of Vishwa Hindu Parishad and BJP. And in protest, Congress demonstrated today. For the last 3 days, such incidents have been taking place. I want to remind them, those Gaurakshaks, that India happens to be the largest exporter of beef, and those beef companies are being run by the Hindu community people, most of them who owe allegiance towards the BJP. And lot of donations the BJP party has received, it has been made very clear. There are evidence also. These beef companies, those who are exporting, they are paying huge donations to the BJP. So it's nothing but to poison the minds and hearts of the innocent people, especially the student and the youth. They want to exploit the scenario to extract political mileage, especially the electoral mileage. They believe in divisive politics, and whatever has happened in this last Eid in Tripura is all because of the divisive nature of politics being adopted by the BJP and other religious fundamentalist forces in the name of Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad and others. So
people of Tripura, the peace-loving people, they don't believe in this divisive politics in the name of religion, caste, community, creed. Tripura has never witnessed such sort of a bitter experience in the past. So this theory is being rejected again and again. But I fail to understand why this BJP over here is trying to adopt this policy as is being adopted across the state. So people are getting ready. People understand everything. As the time comes, they will be taught a lesson, a befitting lesson in due course. It's a very shameful thing that has happened during the last 3 days. Minorities, especially the Muslims, were prohibited for cattle sacrificing in many parts of our state in Tripura. They were beaten up, properties damaged, destroyed. Only source of livelihood was also vandalized. An old aged man, his beard, long beard, was torn by the goons. Well, Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma expressed deep grief over the death of Additional Superintendent of Police Akash Rao Giripunje, who succumbed to injuries sustained in an IED blast in Sukma. This is very painful, a matter of deep sorrow. Sharma said, mourning the loss of the brave officer. The incident occurred during a patrol operation ahead of the Bandh called by Maoists, highlighting the continued threat of insurgency in the region. Authorities have vowed to take stringent measures in response. देखिए भैया, मैं शुरू दिन से लेकर के आज तक एक ही बात कह रहा हूं। आज भी ऐसी ही घटनाओं से चर्चा की बातें पीछे हटती हैं। माओवादी अगर बात करना चाहें तो सरकार बात करना स्वीकार करती है, सरकार जरूर बात करेगी। माओवादी के पीछे खड़े होकर के कुछ लोग हैदराबाद में व्यक्तिगत और कुछ संस्था के लोग बैठकर एक मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद कहें कि अब केंद्र की सरकार ऐसा करे और राज्य की सरकार ऐसा करे, तो ऐसे लोग जो बस्तर के दुखों में कभी सम्मिलित नहीं हुए, उनकी कोई सानी नहीं है, उनसे कोई बात नहीं हो सकती। माओवादियों से आज भी हम चर्चा बात के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और भी सच है कि ये बस्तर के जंगलों में आईडी जो बिछा कर रखे हैं, गांव के उन्नति के मार्ग में आईडी बिछा कर रखे हैं, उस आईडी में बस्तर की आम जनता भी पीड़ित होती है, हताहत होती है, बस्तर के जानवर भी हताहत होते हैं और आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी हताहत होते हैं। आज हमारे एक बहुत ही वीर, जिनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है पहले उनके अभियानों के कारण, ऐसे एडिशनल एसपी जो कोंटा क्षेत्र में थे, सुकमा जिले में, गिरिपुंजय जी, वो शहीद हुए हैं। बड़ा कष्ट है इस बात का मन में, परंतु वीर जवानों के भुजाओं की ताकत से सब कुछ स्पष्ट किया जाएगा, इस बात को भी स्पष्ट किया जाएगा। अभी ऐसी हैं तो मुझे बताइए जरूर। नहीं, कहीं भी कोई हो, आप बिल्कुल चिन्हांकित नाम करके बताइए। भाई जो जिसकी नौकरी है, मैं किसी को जबरदस्ती यहाँ वहां नहीं कहता, लेकिन जिसकी नौकरी जहाँ है उसको वहां कर। स्वप्न को पुनः याद दिलाने के लिए मैं क्या कहूँ आपसे, वो बहुत कष्ट का विषय था, बहुत दुख था उस विषय को लेकर के, बहुत गलत हुआ था, योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। जो किए गए थे, जिन्होंने करवाया था, वो लोग जेल में थे। अनेक बार जेल से उनके बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद काफी दिनों बाद उनको बेल मिला है, लेकिन वो बेल है, अभी पूरी प्रक्रिया बाकी। मैं सोचता हूं कि निर्णय शीघ्र होगा और इस बात की अगली बरसी तक मैं सोचता हूं कि न्यायालय निर्णय जरूर सुना देगी। देखिए भैया, मैं शुरू दिन से लेकर के आज तक एक ही बात कह रहा हूं। आज भी ऐसी ही घटनाओं से चर्चा की बातें पीछे हटती हैं। माओवादी अगर बात करना चाहें तो सरकार बात करना स्वीकार करती है, सरकार जरूर बात करेगी। माओवादी के पीछे खड़े होकर के कुछ लोग हैदराबाद में व्यक्तिगत और कुछ संस्था के लोग बैठकर। Odisha State Minister Prithviraj Harichandan has announced a permanent prohibition on alcohol on
and non-vegetarian food within a specified radius around the sacred Sri Jagannath temple. Within a specified radius around the temple, there will be a permanent ban on alcohol and non-vegetarian foods, he stated. The move aims to preserve the sanctity of the temple area and respect religious sentiments. Authorities are expected to define the restricted zone and implement strict enforcement measures in the coming days. तो उसके लिए पॉलिसी में आ रहा है और ये परमानेंटली शराब और नॉन वेजिटेरियन फूड्स ये दोनों के ऊपर एक रेडियस में मंदिर के एक रेडियस में निर्दिष्ट रेडियस में इसको हम पाबंदी लगाएंगे और नहीं रहेगा ये ऐसा एक प्रावधान कर रहे हैं। ये पॉलिसी में एक्साइज पॉलिसी में है, उसके लिए पॉलिसी में आ रहा है और ये परमानेंटली शराब और नॉन वेजिटेरियन फूड्स ये दोनों के ऊपर एक रेडियस में मंदिर के एक रेडियस में निर्दिष्ट रेडियस में इसको हम पाबंदी लगाएंगे और नहीं रहेगा ये ऐसा एक प्रावधान कर रहे हैं। ये पॉलिसी में एक्साइज पॉलिसी में है, उसके लिए पॉलिसी में आ रहा है और ये परमानेंटली शराब और नॉन वेजिटेरियन फूड्स ये दोनों के ऊपर एक रेडियस में मंदिर के एक रेडियस में निर्दिष्ट रेडियस में इसको हम पाबंदी लगाएंगे और नहीं रहेगा ये ऐसा एक प्रावधान कर रहे हैं। ये पॉलिसी में एक्साइज पॉलिसी में है, उसके लिए पॉलिसी में आ रहा है और ये परमानेंटली शराब और नॉन वेजिटेरियन फूड्स ये दोनों के ऊपर एक रेडियस में मंदिर के एक रेडियस में निर्दिष्ट रेडियस में इसको हम पाबंदी लगाएंगे और नहीं रहेगा ये ऐसा एक प्रावधान कर रहे हैं। ये Responding to the newly formed alliance between Raj Thackeray and Uddhav Thackeray, Minister Shambhu Raj Desai said, which party forms an alliance with which is their own matter. Desai also refrained from making any direct political comment, indicating that such alliances are a matter of party strategy and discretion. The Raj-Uddhav alliance has sparked a political chatter in Maharashtra ahead of the upcoming elections. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवराज्याभिषेक दिन तिथीप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये साजरा होतो आहे। आदरणीय उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी सकाळीच किल्ले रायगडावरती हा शिवराज्याभिषेक सोहळा तिथीप्रमाणे साजरा केलेला आहे। इथं सुद्धा येण्याची माननीय शिंदे साहेबांची तीव्र इच्छा होती, परंतु खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टर या ठिकाणी येऊ शकलेला आहे, म्हणून आम्हाला दोघांनाही मला आणि माननीय आंबेडकर साहेबांना आदरणीय शिंदे साहेबांनी या ठिकाणी आदरणीय गुरुजींच्या या कार्यक्रमासाठी पाठवलेला आहे। हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं विचार लहान मुलापासून ते वयोवृद्धापर्यंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये कोरण्याचं काम जे गुरुजी या वयात सुद्धा करतायत, या त्यांच्या शिवकार्याला आदरणीय शिंदे साहेबांनी पूर्ण सहकार्य आता याच्यापूर्वी केलेलं आहे आणि इथून पुढे सुद्धा त्यांचं सहकार्य राहील अशा पद्धतीचा संदेश हा आमच्या दोन्ही मंत्र्यांच्या जवळ गुरुजींसाठी माननीय साहेबांनी दिलेला आहे। आज In a sharp attack on the centre, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah criticized the Modi government, saying it deserves 0 marks for its performances, and the remarks come amid ongoing tensions between the state and central governments over financial allocations and development issues. The CM also accused the centre of neglecting Karnataka's interest and failing to fulfill its promises. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು? ಅಚ್ಚಾ ದಿನ ಆಯಗ ಅಂತಂದ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ರೈತರದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ವರ್ಷ? ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। 1 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ। ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು। ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, UP-ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ
ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ 50% ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 5,300 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊಟ್ರ? 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದವರು 11,495 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಟ್ರ? ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ. Well, those were the latest updates in Inside Bulletin. Keep watching CVR News Singlers. This is Havila Kuttapalli. Have a good day.